If you look to the right hand side, now you can see part of the Kedron Valley or the Josaphat Valley, the valley that used to separate it, Mount of Olives from the city of Jerusalem. We are now moving from Mount Scopus to Mount of Olives. Mount Scopus is also one of the important mountains in Jerusalem, which is adjacent to Mount of Olives, which is approximately 800 meters above the sea level. So Mount of Olives was the first station for all the people that used to travel to Jerusalem, especially the Jewish when they used to came from the Galilee. They used to cross the Judean desert, climbing up to Jerusalem, and then they used to descend down the Kedron Valley, entering to the city. You can see the Golden Dome, the Dome of the Rock to the right, and this will be the old city of Jerusalem with the walls of Jerusalem. We are going to walk a tour at Mount of Olives. The name Mount of Olives is because of the olive trees that used to be planted at the slopes and the top of that mountain. In Mount of Olives, there were a lot of events took place during the time of our Lord Jesus Christ, especially when they used to travel with his disciples from the Galilee to Jerusalem. So we're going to go down at Mount of Olives. We're gonna stop to visit a few sites at the mountain, and we are gonna walk down part of the traditional road, the Palm Sunday road that Jesus took when he came down to Jerusalem. If you look to the left, you can see the Judean desert, the mountains of the desert, and this is the area from where all the Jews used to climb up to Jerusalem. We are going to visit this desert in one of our day, maybe after tomorrow we will be at the wilderness. We're going to visit Jericho, and we're going to visit the ruins of Qumran where the Dead Sea Scrolls has been discovered. Also we're going to spend some time at the Dead Sea. So today in Mount of Olives there is an Arab neighborhood called the Tur, and it is an occupied territory after the year 1967. You can see also the modern Jerusalem or the Western City to the right over there. We're gonna see all of that in details when we stop at the panoramic view from the place where Jesus wept on the city of Jerusalem, the Domus Flevit Church, where we're gonna see a lot of places and explain it to be clear for you. It's a very good chance. This is a very dangerous area. Starting our tour from the highest peak of Mount of Olives in a place called the Chapel of the Ascension. We can see a rock over here, and this is the place from where the Lord ascended to heaven after 40 days of his resurrection. And you can see a footprint of our Lord over here. So Jesus likes Mount of Olives too much. Even after his resurrection, he came here and he said goodbye to his disciples. So from this spot, this is the place where our Lord ascended to heaven after 40 days of his resurrection. Today, जय मसीह की अज़ीज़ों, आप देख रहे हैं जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये वो जगह है, ये वो पत्थर है जहाँ से खुदावंद यीशु मसीह आसमान पे उठाए गए। हालेलुया। और ये बहुत मुकद्दस जगह है। दो इसके पत्थर के हिस्से थे, लेकिन एक जो था जब क्रूसेडर्स आए तो उन्होंने चुरा लिया, लेकिन ये ओरिजिनल पत्थर है। मैं जिसे छू रही हूँ, और आप भी आए थे, यहाँ खुदावंद के पाँव लगे थे और आसमान पर उठाए गए थे। गॉड ब्लेस यू। मैं वेलकम करना चाहूँगी, आप ज़रूर इस जगह पे आएँ, और खुदावंद यीशु मसीह ने यही पहाड़ पे वापस आना है। गॉड ब्लेस यू। एक बार फिर इस मुकद्दस जगह से आप सबको शलोम मिले और खुदावंद जो है आपके साथ हो। जीसस, थैंक यू। Before the Byzantine period, there were the Romans, and the Romans used to build a pagan temples for idols, for demons, for pagan gods. And when the Emperor Constantine converted to a Christianity, he sent his mother, Queen Helena, to the Holy Land, and she wanted to do something similar
to the pagan temple. Because how come we should make this place important? If we left the cave, and 2,000 years back, there was not a lot of buildings, a lot of houses like that, like today. So if you are left in the cave and people will come in, it will be less important. So they need to mark this place. So they decided to build a place called the church. Church is the house of the believers, where a lot of believers gather together under the name of Jesus. This is the meaning of the church. So in the Byzantine period, they used to be very expert in building, and they marking these places in the churches. The reason why they did not know that today, as us, it's 2014, we are coming to this place to see churches. Somebody say, why they don't leave it? You are right, but the situation was not like 2,000 years back. तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सब और सब ईमानदारों के साथ इसी तरह से होती रहे। आमीन। अज़ीज़, ये वो जगह है, ये वो केव है जहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया। वो शहर से दूर, जब उस वक्त गुफा थी तो कोई दीवारें नहीं थी, पूरे शहर को वो देख सकते थे। तो लॉर्ड जीसस ने जब इकट्ठा किया अपने शागिर्दों को, और शागिर्द कहने लगे, खुदा तू हमें जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बातें सिखाता है, तू भी हमें दुआ करना सिखा। तब यीशु ने अपने शागिर्दों को इकट्ठा किया और कहा, पहली बार कि हम बाप को, खुदा को अपना स्वर्गीय पिता कह सकते हैं। तो यहाँ से पहली बार इंसान को हक मिला कि वो खुदा को बाप कह सके। सो जब हम दुआ करते हैं, ओ हालेलुया, एबा फादर, जैसे अब्बा कहते हैं, यहूदी लोग कहते हैं अब्बा, कहते हैं बाप को अब्बा। तो अब हम पहली बार इंसान को यीशु ने हक दिया कि उस यीशु जो खुद खुदा है, उसने कहा बाप को अब्बा कह सकते हो। तो इस केव से, इस गुफा से जो थी, ये बिज़ेंटाइन के टाइम की ये चर्च है, तो उसके ऊपर ये बिल्ड किया हुआ, लेकिन इसी तरह की गुफा थी जहाँ खुदावंद अपने शागिर्दों को लेकर आते और तालीम देते। ये वो जगह है जैसे मैंने बताया कि जहाँ दुआ होती है, तो ये सारा उन्होंने रखा हुआ है। लोग अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट यहाँ डालते हैं। सामने कितनी खूबसूरत जगह है जहाँ हम जा रहे हैं। आप ज़रूर आएँ, जो एक बार ज़िंदगी में आना है, आपके दिल में है, आप अपने कमरे में बैठकर टीवी पे इस वक्त देख रहे हैं, और 1 दिसंबर महीने का पहला दिन है, और क्या ही मुबारक है वो कदम जो खुदा के घर में आते हैं। सो अज़ीज़ो, खुदा आपको भी यहाँ लाना चाहता है, आप ज़रूर आएँ। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, ज़रूर आएँ। हमारे गाइड, our guide is with us. Isa, how many times you've walked down this path? Oh, I can't remember really. A lot of times. Each week actually I walk in stones. Yes. Each week I have once all over during the year. Very good. Well, I want to say thank you for keeping us a company each time we are here in Israel, and we thoroughly enjoy the tour. It's such a lovely weather as well. You've had a lot of rain, haven't you, in the past, last week? For last week it was heavy rain. Now during the week it's gonna be very nice. Yeah. Yes, enjoying the sun. Even when we go to the desert, to Jericho, to the Galilee, it will be more warm. Yeah. So it is very nice time to come in the year, the beginning of the King Herod. It was the same temple that Jesus has been taken when he was 40 days old. This is the same temple that he came back when he was 12 years old, when they do the celebration, the bar mitzvah. And when he got lost, they came back and they found him here. What are you doing here? This is the house of my father. This is the same temple that he kicked out the merchants during the Passover holiday over here, when he kicked them out. This is the same temple that the curtain of the Holy of Holies has been split into twice when he died on the cross at the Golgotha. Where is that temple? Temple has been destroyed in the year 70 AD, never built again. When the Muslims came to Jerusalem, it was empty. It was a garbage area.
according to their story, their Prophet Muhammad ascended to heaven. This is the reason they built these two shrines, the Dome of the Rock and the Al-Aqsa Mosque, in the year 691 AD. The Byzantines, when they came to Jerusalem, they came in the 3rd century. They left it an empty area. Why? Because Jesus was crying on Jerusalem from that spot. To fill the prophecy of Jesus, they did not touch it. And this spot, what is the major problems between the Muslims and the Jewish in the city of Jerusalem? Because the Muslim denied the existence of the temple, and the Jewish insisted that this is over here. So if the temple was here, the entrance to the temple, it will be from that corner. We do have the triple and the double gate known as the Khulda gate, where the people used to come carrying their sacrifices to slaughter at the altar in the Holy of Holies in front of us these days. So the two arches which are closed at this place, this is what we call the Golden Gate, or the Gate of Mercy. We believe that Jesus Christ, when he came back to Jerusalem, he will enter through that gate. To the right hand side, this is the Lion's Gate, or the St. Stephen's Gate. We can see all over there. This is the place where tomorrow we are going to start our Via Dolorosa, visiting the pool of Bethesda. आंसू बहाए और शहर के लिए रोए। जब आप देखते हैं ईस्टर का मौका होता है तो हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, यीशु को याद करते हैं खुदावंद के दुख और दर्द के साथ। इन तो यहाँ 2000 साल पहले की अगर बात करें, जब यीशु मसीह यहाँ आए, तो यहाँ जो आप देख रहे हैं दो गोल्डन और वो ब्लैक मॉस्क ये नहीं थी, यहाँ मंदिर था जो सोलोमन ने बनवाया था। और यहीं पे खुदावंद यीशु मसीह जब 13 साल के थे, अपने अर्थली 12-13 साल की उम्र थी उनकी, अर्थली फादर और मदर के साथ, यानी कि यूसुफ और मरियम के साथ यहाँ आए थे। और उन्होंने जो याद है आपको सवाल किया था उनसे, जो थे फ़की फरीसी लोग थे, उनसे सवाल जवाब किए और लोग हैरान हो गए कि क्यों, कहाँ से इसने ऐसी तालीम पाई है। तो इस टेंपल में वो सब कुछ हुआ था, आपके सामने है। और इसी टेंपल पे खुदावन ने जब लोगों को देखा कि रीति रिवाज तो बहुत करते हैं, बहुत चढ़ाने सब कुछ करें, लेकिन उनके दिल साफ नहीं है, तो खुदावंद इसी जगह पे रोए थे और कहने लगे कि जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और मैं उसे आबे हयात से मुफ्त में पिलाऊंगा। तो थोड़ी सी आपको तस्वीर देने के लिए कि यरूशलेम में क्या क्या हुआ, क्योंकि यरूशलेम एक ऐसी ज़मीन है जिसे खुदा ने अपनी ज़मीन कहा है। दुनिया की कोई ऐसा हिस्सा नहीं है धरती का, ज़मीन का, जिसे खुदा ने अपने नाम रखा। और ये जो है जगह, ये इसलिए मुकद्दस है क्योंकि यहीं पे जो थी अब्राहम को जब हुक्म हुआ, खुदावन ने उसके फेथ को टेस्ट किया, तो उसे कहा कि जो तेरा इकलौता लाडला है जिसे मैंने तुझे दिया है, ले जा और उसकी कुर्बानी कर। तो जहाँ ये गोल्डन मॉस्क है, इसके ऊपर वो थ्रेशिंग फ्लोर कहते हैं, जहाँ वीट और बार्ली को लाते थे, झाड़ते थे। और वो जगह यहूदियों के लिए इतनी मुकद्दस होती थी, जहाँ वो अपने आके फसल को वो लाते और वो सारी उसकी सफाई होती। तो ये जो जगह थी, दाऊद ने खरीदा था इसे। दाऊद नबी जो था, उसने इस पहाड़ को, इस जगह को ख़रीदा था। जब वो यहाँ आया तो उस जगह पर वो थ्रेशिंग फ्लोर था, पाक जगह जिसे कहते हैं, पत्थर है, उसके ऊपर अब्राहम जब वहाँ से चल कर आया और इस ये ऊपर ऊंचे पहाड़ पे जो था उसको ले गया कुर्बानी देने के लिए। तो अब्राहम आइज़ेक को यहाँ लेकर आए और यहीं पे खुदावन ने आसमान से, हालेलुया, आसमान से आवाज़ आई कि तूने मतलब प्रूफ कर दिया है, तो अपना बेटा जो था उसे, उसका भी मतलब कहते हैं सरफा, पंजाबी के अंदर कहते हैं, हाँ पंजाबी के अंदर सरफा नहीं किया, लेकिन तूने ऑफर कर दिया। और यहीं पे खुदावन ने वो सेक्रीफाइस जो चाहिए थे, कुर्बानी, उसे मेमना उसे पेश कर दिया जो था। सो यहीं पे हम देखते हैं कि कलवरी की तस्वीर खुदा ने ओल्ड टेस्टामेंट में पेश की। तो इसलिए किसी इंसान को जान देने की ज़रूरत नहीं, इसलिए लॉर्ड जीसस जब आए और इसी जगह पे खुदावन यीशु मसीह ने अपनी जान दी। इस तरफ से मैं इस लेफ्ट साइड से मैं शुरू करूं तो आप देख सकते हैं जो पुराना शहर था दाऊद के ज़माने में, वो जो नीचे ये सड़क है ना, इसके साथ लाल आपको छतें नज़र आ रही हैं, उसके नीचे जो है वो दाऊद का जो था शहर था, जहां दाऊद, क्वाइट प्लीज फॉर 1 मिनट। और उसके जो पीछे हैं वो खुली जगह देख सकते हैं, वहाँ जूडस इस्कारियत ने खुदावंद को कितने सिक्कों के लिए बेचा? 30 पकड़ाया गया। और रात को जब हम कहते हैं थर्सडे की रात को जब पकड़ा गया, तो इस यहाँ कुएं की तरह नीचे लटकाया गया। उस जगह को हम विजिट करेंगे। यहाँ जो था मुर्गे ने क्या किया? बांग दी थी और उसने यीशु का जब इनकार किया था, पतरस उस जगह पे फूट कर रोया। ठीक है, फिर आगे जैसे चलते हैं, वो जो ऊपर सामने ग्रे है, वहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी फिसा खाई, द लास्ट सपर उन्होंने खाया। वो चर्च बन गया। ऑफ कोर्स चर्चेस, हर जगह पे चर्चेस है, वो उनको
गुजर दिया। उस जगह पे जाएंगे, खुदावन ने वहाँ रोटी तोड़ी और कैसे फिर ये जो है यहाँ नीचे जो है बाग है गतसमनी का, जहाँ खुदावन यीशु मसीह का पसीना लहू बन गया। सो यहाँ नीचे खुदावन ने आंसू बहाए। तो ये जो रशियन चर्च है मैरी मैगडलिन के नाम से कहलाई जाती है, इसको अन्य जिसने यीशु ने आंसू बहाए। तो ये देख सकते हैं अजीज़ों उस वक्त, और ये मतलब अब भी जो है जेरूशलम में आप इत्मीनान को, पीस को फील कर रहे हैं सारे। यू फील दैट स्पेशल पीस। दुनिया कुछ भी कहे, मीडिया कुछ भी कहे, न्यूज़ चैनल कुछ भी कहें, लेकिन यहाँ देखें खड़े होकर दिसंबर 1 दिसंबर है, कितना पीस है, कितना इत्मीनान है। अजीज़ों ये जो मसीहत है, क्रिश्चियनिटी है, उसका एक्चुअली असली पैगाम शांति, अमन, पीस और आज़ादी है। पर पीस और आज़ादी, अमन हमें तब मिल सकता है जब हम अपनी रूहों में वो उस आज़ादी को लेंगे, यीशु को कबूल करेंगे और उसकी कुर्बानी को कबूल करेंगे। इसलिए खुदा ने कहा उसको जानवरों की कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए लॉर्ड जीसस ने एक बार अपनी सेक्रीफाइस दे दी। इसीलिए हम आज खुशी से कह सकते हैं ये वो यरूशलेम जिसमें सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, सबसे ज़्यादा जो है मार कुटाई हुई है, खून खराबा हुआ है, लेकिन फिर भी इस जगह पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये राज की बात है कि खुदा का तख्त डायरेक्ट आसमान पे इसके ऊपर लगा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस वक्त अपने हाथ उठाएं, खुदा यहाँ से उठकर गए थे और इसी जगह पे वापस आना है। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, लॉर्ड जीसस की जय, हालेलुया। तो ये कहते हैं अगर खुदा से किसी ने मिलना है, दिस इज द क्लोजेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ। दुनिया का सबसे ये जगह उसके नज़दीक है तख्त के, अगर किसी ने खुदावन यीशुआ हमशिया से मुलाकात करनी है। आमीन। तो अजीज़ों आपके लिए भी मौका है, हम सब के लिए भी मौका है, अपने हाथ उठाएं और खुदावन का शुक्र करें। खुदावन हमें कबूल कर, तू हमें कबूल कर। यरूशलेम तेरी सलामती हो, तू हमेशा सलामत रहे, क्योंकि तू एक राजा का शहर है, तू क्योंकि खुदा दी धरती है, पवित्र नबियां दी धरती है। खुदा तू हमेशा आबाद रहे। यरूशलेम को दुआएं दें, यरूशलेम की सलामती के लिए दुआ करें। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा तेरी रोशनी हमेशा यहाँ से दुनिया तक जाएगी, पूरी दुनिया में तेरा नूर यहीं से फैलेगा खुदा। और खुदा मुकद्दसीन बार बार आएंगे तेरे सजदा करने के लिए, खुदा तुझसे मिलने के लिए। खुदा बाप हमारी भी आज के इस खुदा की इबादत को तो कबूल कर। पहला खुदा दिन है दिसंबर का, महीने का मुकद्दस का पहला दिन है, तुम्हें ब्लेस कर, बरकत दे, और जो रसूलों को दी वो हमें दे, ताकि हम पूरी दुनिया में तेरी खुदा मनाती कर सके, तेरे जलाल को लेके जा सके। और जो इत्मीनान, सुकून, तसल्ली, शिफा तूने दी है खुदा, हम उसे बांट सके। यीशु हमारे हाथों को ले ले, यीशु हमारे सांसों को ले ले, यीशु हमारी जिंदगी को ले ले। यीशु सारी की सारी बातें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। जहाँ खुदावंद यीशु मसीह आए अपने शिगिर्दों के साथ, पतरस, याकूब यानी कि जेम्स और यूहन्ना के साथ इस बाग में आए, और उस रात जिस रात उन्हें पकड़वाया जाना था, बड़े दुख के साथ, बड़े दर्द के साथ, बड़े गमहीन थे खुदावंद उस रात को यहाँ पे आए दुआ करने के लिए। अक्सर अपने शिगिर्दों के साथ आया करते थे। ये एक बहुत खूबसूरत बाग हुआ करता था उस वक्त का, और इस वक्त भी आप देख सकते हैं हम गार्डन ऑफ गेथसेमनी में खड़े। गेथसेमनी का मतलब है क्रश किया जाना। जब जैतून को क्रश किया जाता है, उससे तेल निकाला जाता है, उसको बिल्कुल अच्छी तरह से क्रश किया जाता है। तो जो है खुदावंद यीशु मसीह को भी उस रात यहाँ पे क्रश किया गया मेरे और आपकी खातिर, ताकि हम तसल्ली और सुकून पाएँ। ऐसे ये बाग पहले मैं समझती हूँ कि ये खुला होता था, ये उस वक्त के रहने की जगह, और उस वक्त भी क्योंकि लोग दूर से आते थे, तो ये जगह वहाँ यहाँ पे बहुत मुश्किल होता था। तो खुदावंद यीशु मसीह जो केव्स होती थी, जो गुफाएं होती थी, उनके अंदर लोग आके रहते थे। तो लॉर्ड जीसस ने भी अपने शागिर्दों को उन गुफाओं में एक पास ही जैसे केव में रखा था, फिर वहाँ से चलकर रात को यहाँ उस प्रेपरेशन के लिए आए जिसके लिए वो आए थे, जो उनका खास मकसद था। तो यहाँ जब लोग पहले पुराने आते थे तो वो पेड़ों से लकड़ी तोड़ के ले जाते थे, तो इसलिए तब से ये जो है इन्होंने गार्डन बंद कर दिया है, फेंस लगा दिया है।
ताकि इसको रखा जाए जैसे हम जैसे हैं, हमारे आगे बच्चे आए तो देख सकें कि उस वक्त ये बाग कैसा था। अब खुदावंद यीशु मसीह 3 शागिर्दों को लेके आए हैं। कभी आपने सोचा है कि वो नहीं बाकी शागिर्दों को भी साथ लेकर आए? इसलिए वो यूहन्ना को, जेम्स को अपने और पीटर को साथ लेकर आए थे, क्योंकि खुदावंद चाहते थे कि आने वाली पुश्तों को इनकी गवाही से पता चले कि कैसे खुदावंद यीशु मसीह ने सफ़र किया। तो अब हम उस चर्च में जाएंगे जहां आप बहुत ऊंची आवाज़ नहीं कर सकते। वहां नीले रंग का और पर्पल रंग का कलर दिया गया है शीशे को, ताकि खुदावंद बहुत उस दिन बहुत गमगीन थे और खुदावंद के जो आंसू और जो पसीना जो बहा मेरे और आपके प्यार की खातिर उस कुर्बानी के लिए जो जाने वाले थे, वो तो लहू बन गया और पत्थर पे बूंदे बनकर गिरने लगा। और ऊपर से क्या हुआ, आसमान से खुदा ने फरिश्ते भेजे, इसने। लेकिन खुदावंद ने कहा, खुदावंद अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो अजीज़ों, हम मिलकर यहाँ गतसमनी के बाग में हमेशा ये वादा करते हैं, खुदावंद जो कुछ भी हो, जितनी मर्जी हमें सज़ा मिले, जितनी मर्जी लोग हमें बुरा कहे, जैसी भी हमारी कंडीशन, हमारे बच्चे हमें छोड़ दे, कोई ना पूछे, लेकिन हम फिर भी कहें, खुदा बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आमीन। तो अब हम चर्च में चलेंगे, वहाँ दुआ करेंगे और इस बाग में से हम सब देख सकते हैं दर्शन बहुत इमोशनल है। खुदावंद नू प्यार करती और सारा दिल करे हुए ने और खुदा नू प्यार करती और बहुत तमन्ना से इत्थे आन दी। दर्शन बोल के दसो की महसूस कर रहे तुसीं इत्थे आके? मैंने कुछ नहीं पता लगता, मैं प्रभु की मर्जी हुई है, मैं सब कुछ भुल बैठी, मैं कितने यीशु मसीह को देख रही हूँ। मैंने एक्साइटेड हुई हाँ कि मैं पता नहीं लगता मैं की बोला। धन्यवाद करती, मैं शुक्र करती है कि मैंने लेके आया मेरे यीशु। तुसीं कुछ बोलना चाहोगे? थैंक यू दर्शना, गॉड ब्लेस यू। बोलना चाहोगे कि तुहानू महसूस हो रहे थे खड़े होके? ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ। थैंक यू जीसस। थैंक करना ही है प्रभु, मैं अपना हाथ सर्च still yeah. Praise God, खुदा ताकत। थैंक यू जिनी, गॉड ब्लेस यू। ये वो जगह है जहाँ खुदावंद यीशु मसीह का जो पसीना था वो लहू की बूंदे बनकर गिरा। ये वो पत्थर है, ये वो जगह जिसके ऊपर चर्च बिल्ड की गई है। इस वक्त सब दुआ को है, बहुत प्यारी खुदावंद के नाम से चर्च सचमुच यहाँ बहुत अलीम चलते हो। देख सकते हैं ये जगह जो है बहुत इमोशनल हम हो जाते हैं और जैसे देख सकते हैं यहाँ घुटनों के बल होकर दुआ भी कर रहे हैं। और कई अजीज़ों ने कहा कि भाई पैम लेके जाती है इज़राइल तो लोग पत्थरों को
सजदा करते हैं। मैं क्लियर बात करना चाहती हूँ, ये देखें आपके दिल जो अगर पत्थर है ना, हालेलुया, जीसस के सामने झुक जाते हैं, तो वो पत्थरों को नहीं सजदा कर रहे होते, वो यीशु को सजदा कर रहे होते हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि दुआ गो हैं, दुआ में हैं हमारे अजीज़, और उनके दिल अंदर से जब विज़िट करके आए उस जगह को जहाँ खुदावंद यीशु मसीह बहुत मतलब उस वक्त तकलीफ़ में थे, हमारे लिए दुख उठा रहे थे, तो उस चर्च से हम होकर आए हैं और हमारे अजीज़ हमारे साथ हैं। खुदावंद का शुक्र है, हालेलुया। और ये गार्डन of Gethsemane, like I said, and thank you once again, for this particular place that we are here. Any thoughts? Because you keep coming here over and over again, and we get very emotional here every time we come. So, have you seen many changes in this place since the last time, or the times that you've been coming Actually, here? all the concentration is on they added the light system for the trees, so at night it will be all lighting. Okay. You can see these lights over there. These are the orange pipe over there. This will make a very nice view at night for this garden. And before 1 month they collected the seeds, and the connection here that they were crushing the seeds to take out the oil. And Jesus has been died on the cross. They crushed him in the salvation for the whole nation. So this is a very special place, important place. As you see, we are standing here. You can see part of the rock, which is the other part of the rock is underneath this church. The rock of agony, reminding us about Jesus. In the middle of the night, weeping and crying and sweating. Oh man, hallelujah. Zinni, your thoughts? I have no word to say, I'm so emotional about it, so that's why I was just praying and praying. But Jesus, he had to suffer all about this because of us now, for our salvation. And he said, God, it's your will be done. So the same way we should say to God, whenever we're suffering, we should say this. Amen. We are now walking down the steps toward the tomb of Virgin Mary, and we are in the middle of Kidron Valley. According to the Jewish tradition, Kidron Valley was a burial place as well as the Mount of Olives, as we saw a lot of tombs and a lot of cemetery were at the slopes. At this place we have the traditional place where Virgin Mary was buried. A lot of Christians believe that Virgin Mary has been never died, and she got in a deep sleep and the angel took the body up to heaven. So inside down we have the Byzantine church that has been built here. The entrance over here is built from the time of the Crusaders in the 11th century. It's one of the oldest churches in Jerusalem, commemorating for us the burial place of Mother Mary. So you can go down to the right hand side, you can see the tomb of Our Lady Mother Mary. Please. अज़ीज़ों, जैसे आप देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ हैं, काफ़ी नीचे तक जाती हैं। खुदावंद शुक्र है कि हमें हिम्मत और ताकत दे रहा है। माँ मरियम की टूम पे हम जा रहे हैं, जहाँ खुदावंद यीशु मसीह, जैसे मैंने कहा, हमें ताकत दे रहे हैं चलने की। माँ मरियम यहाँ दफनाया गया था। ये उस तरीके में जो थी, पहाड़ों के अंदर इस तरह केव्स होती थी जिसके अंदर उनको दफनाया जाता था। ये अब हम उसके अंदर दाखिल हो रहे हैं। माँ मरियम की टूम जो आप देख रहे हैं, लोग अंदर जा रहे हैं। यहाँ माँ मरियम को दफनाया गया, इस वक्त आप देख रहे हैं। जो रात में लाइट्स जल गई हुई है तो कितना हम आए हैं ऊपर अपर रूम में। हाँ, और ये जगह पे जहाँ
खुदावन ने अपने शागिर्दों के साथ रोटी तोड़ी और प्याला पिया, पीने को दिया। जीसस तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। आए अजीज़ों, आपको कमरे में ले चलते हैं जहाँ 120 की जमात इकट्ठी हुई थी। ये इस जगह पे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को इकट्ठा किया था थर्सडे की शाम, और इकट्ठा करके यहाँ उनके साथ उनके पाँव धोए। पतरस ने कहा, खुदावंद तू मुझे सारा नहा दे। खुदावंद ने कहा, नहीं, इस वक्त तेरे पाँव धोने की ज़रूरत है। तो इस जगह पे जो खुदावंद ने यीशु ने एक सर्वेंट हुड होकर या सर्वेंट बन के, खादिम बन के खिदमत की। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक लिखा है कि वो अपनी खिदमत करवाने नहीं बल्कि करने के लिए आया। सो खुदा जी ने जीसस ने खिदमत की, इस जगह पे अपने शागिर्दों को इकट्ठा किया। और जिस तरह ये गा रहे, इसी तरह एक हिम गाई उस रात, उस वक्त खुदावंद ने, क्योंकि दूसरे दिन चले जाना तो पकड़ाए जाना था, तो उससे पहले उन्होंने यहाँ गाया, खाना खाया। तो कहते हैं कि ये हो सकता है कि जो मरकज़ था उसका घर था, तो उसकी माँ ने जो था खुदा परस्त थे ये लोग, तो उन्होंने शायद, क्योंकि उस वक्त जो था ईद होती है, जिसका मतलब है कि पास ओवर होता है, ईद क़याम जिसे कहते हैं। हाँ जी, तो वो उस वक्त बिजी जगह थी। तो जो लोग यहाँ, जिनके पास मकान होते थे, जो वैसे तो लोग केव्स में रहते थे, लेकिन जिनके पास मकान होते थे वो अपने केव्स में रहते थे, अपने घरों को खाली करके किराए पे दे देते थे। इनकम का एक रास्ता था। तो कहते हैं कि हो सकता है कि ये मरकज़ का घर था, उन्होंने खाली कर दिया। और खुदावंद यीशु मसीह ने जैसे फरमाया था कि जाओ रोटी का इंतज़ाम करो, आज रात में आपके साथ जो है खाने वाला हूँ। तो इस कमरे में आए, तो इस जगह पे खा के इसके बाद वो जैतून के पहाड़ की तरफ चले गए, जहाँ से गतसमनी के बाद में हम गए हैं। खुदावंद जी वहाँ चले गए, वहाँ उन्होंने दुआ की, वो सारा हमने देखा। कमिंग बैक हियर अगेन, जब खुदावंद जी मसलूब हो गए तो यरूशलेम में बहुत सारे चर्चा, बहुत सारा शोर मच गया, और जो पतरस और सारे डिसाइपल, माँ मरियम, सब डरे हुए थे और इस जगह पे इकट्ठे थे। ओके, इन टोटल 120 जने थे जो यहाँ इकट्ठे थे, डर के मारे कि यूदी उनको मार ना दे, बहुत ज़्यादा शोर मच गया था, बहुत ज़्यादा जो था परसिक्यूशन होने लगा। तो यहाँ खुदावंद ने कहा, जैसे हम पत्थर पहली साइड पे हम गए थे ना, पत्थर लेके जहाँ से खुदावंद ऊपर गए, जहाँ जब ऊपर से गए तो शागिर्द देखते रहे। खुदावंद के फरिश्ते ने आके कहा, तुम क्या देख रहे हो? जैसे खुदावंद ये ऐसे ही वापस आएंगे। तो उसके बाद उनको बात, जैसे खुदावंद ने कहा था, तुम रुके रहना यरूशलेम शहर में जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा ना मिल जाए। तो 120 की जमात यहाँ जमा थी और वो दुआ करते थे एक दूसरे के साथ, लेकिन उनकी ज़िंदगी तब बदली कि जिस दिन वो मिल के दुआ कर रहे थे और ऐसी आंधी चली कि ये सारी पूरी ज़मीन हिल गई, ये पूरी जगह हिल गई। और जो थी पवित्र होली स्पिरिट उनके ऊपर, जैसे कहते भट्टू आग जैसी होती है, अग्नि सा इस तरह की ज़ुबानी वो बोलने लगे। तो यहाँ खुदावंद यीशु मसीह ये बंद था, हमारा डरे हुए थे, तो लेकिन लॉर्ड जीसस एंटर का पीस, शालोम, शांति। तो ये जो जगह थी, और इसके बाद जो थे फिर सब बपतिस्मा मिला, और फिर इसके बाद जो थे उन्हें दिलेरी आ गई, और वो चले गए दुनिया में खुदा के उस हुक्म को पूरा करने के लिए। जाओ गैर कौमों को, दादी को, माँ बेटा को उसके नाम में बपतिस्मा दो और लोगों को शामिल करो। तो हमारा जो रवैया ज़िंदगी का होना चाहिए, लोगों को लाना है, ऐसे ही नहीं होना कि लोग हमसे दूर भागे। सो ये भी जगह तो हम खामोशी से जिसका दिल चाहते हैं दुआ कर सकते हैं। मैं भी छोटी सी दुआ करूँगी। पहले हम लोग यहाँ गीत गाते थे, लेकिन हम अपने के गाना करते फिर उसके बाद जो थे देख सकते हैं कि ये मॉस्क बन गई, जब मुसलमानों ने तो टेक के तो मॉस्क बन गई। लेकिन अब ये जो मिनिस्ट्री है, टूरिज़्म की मिनिस्ट्री है, उनके अंडर है। सो ये सारे फेथ्स के लिए खुली है, आगे कोई भी दुआ कर सकता है। और कहते हैं कि इसके नीचे जो है दाऊद की जो है टूम है, जहाँ उसको रखा। सो वी विल विजिट दैट, लेट्स जस्ट प्रे। यार आसमान बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा खुदा जो गैर ज़बानें मिली, जो खुदा हेवनली टंग मिली, खुदा जिनको आज नहीं है वो गिफ्ट खुदा मेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में मिल जाए। खुदा हीलिंग दे, स्पिरिचुअल हीलिंग दे, फिजिकल हीलिंग दे, फाइनेंशियल हीलिंग दे। खुदा के प्यारे बाप से बाहर के लेना चाहते हैं, तेरी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, तो यीशु जवाब देता है। लॉर्ड जीसस आप सबकी ज़िंदगी को टच कर, और हालेलुया होली स्पिरिट, हालेलुया होली जीसस तेरा शुक्र करते हैं। यस के शोलों के माध्यम से जैसे शिकली से जब उसमें से निकल गए,
दुनिया में तेरी तरफ फैलाने लगे। हमें लोग तेरी सारी चीज़ें में तेरा गुलाम चलाए खुदा। हम तूने कहा जब तुम यीशु को उठाओगे तो वो कौमों का विश्वास है। तो खुदा हम जब इस कपड़े से बाहर कदम रखें तो हम यीशु के नाम का जलाल देने वाले अपने इस किताब को शैतान को एक्सपोज करने के लिए और खुदा के रास्त में तेरे पास दूसरों को भी मिले ताकि खुदा बोले तुझ पे पड़े वो मौसम तुझे बंधन मिले इस जगह के लिए आए और तेरे सारे अच्छे वादों के लिए आए खुदा कि तू आज भी यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया हालेलुया। बहुत तेरा शुक्र करते हैं प्रेम और सरफराज की लाइफ के लिए जिन्होंने ये ग्लोरी टीवी के जरिए से खुदा बड़ा अच्छा काम किया है खुदा और अब भी कर रहे हैं खुदा। मैं तेरा शुक्र करती हूँ ये तेरे जिंदा खत्म तेरे जिंदा गवाह है। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। इनको बड़ी बरकत देना और उम्र की दराज़ी देना और इनके चैनल को हमेशा हमेशा कायम और दायम रखना। हालेलुया। खुदा बुरी नज़रों से इनको बचा के रखना है और इनको बड़ी बरकत देना खुदा। इनके बच्चों को बरकत देना है। सेहत की तंदुरुस्ती की ज़िंदगी की तरक्की की सारी राहें इनके आगे आगे होके चले आए खुदा और तू इनके और आगे चल रहा है खुदा। इनको बरकत दे आए खुदा। पूरे ग्रुप पर तेरा ताज़ा मसा अभी आगे ठहर जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बड़े की तारीफ हो खुदा के बर्रे तू जो दुनिया के गुनाह उठा के लिए चल रहा है खुदा। आज भी खुदा यहाँ पर मौजूद और बरकत दे रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। एक्सपीरियंस रहा सो फार हुण असीं अपर रूम ते आए हैं और अंदर दुआ की अपने लफ्ज़ों च कुछ कहोगे? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तुसी फील कर सकते हो कि उस टाइम किहड़े वाक़यात होए और तुसी की इन बिल्डिंग्स ने इन्हां चीज़ां नूं वेख के ते ईमान होर ज़्यादा मजबूत हुंदा है और सानूं इत्थे आना चाहिए कि सानूं होर लोकां नूं भी दसना चाहिए ताकि लोग आन ते उन्हां दा मान मजबूत होए क्योंकि इन्हां चीज़ां नूं वेख के तुसी उस चीज़ां नूं फील करदे हो ते तुसी वो सारा एक सीन जिहड़ा ना तुहाडे अगे घूम जांदा है ते तुसी एक नवें सिरे तो तुसी दोबारा तो पुख्ता मान दे नाल तुसी सारियां चीज़ां नूं याद करदे हो। सरस साइड पे आके हाँ जी सिस्टर तुसी इधर आ जाओ। हाँ जी बोलो। हाँ जी इत्थे आके बड़ी खुशी हुंदी है। दिल करदा बार बार आइए। ये दुआ करदी हूँ मैं जिथे भी है मेरा सारा खानदान इत्थे आवे और मैं परमेश्वर तो ये कहनी दुआ पिता मेरे सारा ब्लड रिलेशन तेनू जाने बिना ना वापस अज मेरी दुआ है कि मेरा सारा खानदान सारी दुनिया ही इत्थे आके तेनू जाने पिता परमेश्वर तेरा मैं शुक्र तेरा धन्नवाद करदी हाँ तू मैनू फिर इस धरती ते लैके आया तेरे बेटे यस्सू दे नाम दी जय जयकार करदी दुआ मंगदे असीं आमीन। थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। बोले कुछ? हाले हाँ पे बहुत ही अच्छा लगन दिया था मैंने तो इस तरह जिस तरह की कंपनियां आंदियां ने पियां इत्थे और जो कुछ ही पढ़िया सी उसे तरह ही लगता है कि जिस तरह अज भी खुदा इत्थे मौजूद है उन्होंने शागिर्द आस पास नहीं है ना और जिन्ने ग्रुप आ रहे हैं वो भी इसे ही मान दे नाल इत्थे आए ने और बरकतां लैके जा रहे हैं तो खुदा उन्होंने और साडे ग्रुप की बड़ी मदद करे हिफाजत करे और जिहड़े लैके आए ने खास तौर नाल उन्होंने खुदा बहुत ज़्यादा बरकत देवे क्योंकि यह जिहड़ा बेड़ा है ये आम आदमी नहीं उठा सकता ये खुदाम दी पाक रूह दी मर्जी दे नाल ही जिसनूं मुकर्रर करदा होवे ओहदे कोलों ही ये खिदमत लई जांदी ते खुदाम दा मैं शुक्र करनी है कि प्रेम तेनू और सरफराज नूं खुदाम ने ये खिदमत बहुत जिहड़ी मुश्किल है और बड़ी वड्डी खिदमत है खुदाम ने तुहानूं दित्ती है खुदाम तुहानूं बड़ी बरकत दे ग्लोरी टीवी नूं बहुत ज़्यादा कायम ते दायम रखे ता हयात और तुहानूं सेहत तंदुरुस्ती और उम्र दी दराज़ी दे आमीन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। किसी ने कुछ फील होया यस हाँ जी बिल्कुल बोलिए किस तरह लग रहा? ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ
ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ ਗਾਡ ਕਹਿੰਦਾ 100% ਨਹੀਂ 50% ਨਹੀਂ 1000% ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਵਨ ਵਰਗਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈਵਨ ਵਰਗਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਸਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਲੋਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਓਗੇ ਗਲੋਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਆਮੀਨ ਡੇਵਿਡ ਦੀ ਟੂਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਫੀ ਡੀਪ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਡੇਵਿਡ ਦੀ ਟੂਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਪਾਈ ਸੀਗਾ ਜੀਸਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਨਬੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਚੱਲੇ ਆ ਥੱਲੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ये देख सकते हैं डेविड की राजा की यहाँ उनको बैरी किया गया था किंग देख सकते हैं कि औरतें एक तरफ दुआ कर रही हैं और मर्द दूसरी तरफ और ये जो है डेविड की टूम है हाँ जी इस वक्त Figs, dates, mango, apricot. एक ये ले लेते हैं ये क्या है Pecan nuts. हाँ ये भी खट्टी चीज नहीं है एनीथिंग टैंगी सावर Candies, candies. नो कैंडी इज नॉट कैंडी I have blend. और ये वाली है ये होंगे I have कौन सी चीज जो आपको खट्टा खाने को भी दिल कर रहा है अच्छा बस अब mango, apricot, which one you want mango जस्ट मैंगो mango और ये वाला what this one pistachio. how much आई थिंक दिस शुड बी व्हाट इज दिस Sweet, sweet. Not so sweet. नॉट सावर जस्ट और कोई कौन सा क्या ये एक ले ले ये $3 ये एक ले ले ये नहीं ये वाला ये ज़्यादा मीठा नहीं हो जाएगा ये पिस्ताशियो है नहीं मुझे नहीं ये वाला फिग ये अच्छा ये वाला फिग ये हाँ זה משנה אם אני לוקח אתנו את השחורים? ये सच है खुदा के घर में हमेशा खुशी होती है यहाँ का माहौल देखें आप बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं बच्चे भी आए हुए हैं और तबले बाजे बज रहे हैं खुदा के घर में हमेशा खुशी होती है और सचमुच इस खुशी को पाने के लिए ये वॉफर रूम जहाँ से हम होकर आए सीढ़ियों से चढ़कर जैसे खुदावन जी गए होंगे और जिस रात खुदावन जी ने सफ़र है लास्ट सफ़र और ये बहुत खूबसूरत किस्म का माहौल है हम सारे बहुत एंजॉय कर रहे हैं रियली ये लाइफ में एक बार तो आना चाहिए और हर मसीही के लिए वैसे सरफराज हमेशा कहते हैं कि हर क्रिश्चियंस के लिए ज़रूरी है कि आया जाए एक बार लाइफ में और ये देखिए कितना प्यारा म्यूज़िक बजा रहे हैं कितने डॉलर की एक्ट्रेस अमेरिकन $7 In the morning, Mount of Olives. We were over there. We were at the Dominus of Levitt between the trees. We are looking toward this place. Remember, we point out this place from there. We said this is the place where where Peter denied Jesus 3 times before the rooster crew. Behind me, exactly, this was Jesus.
You can see some windows at the corner over there. Yeah. This is the southeast corner of the temple. To the other side, if you go straight, this is the northwest corner of the temple. The northwest corner of the temple, this is the highest peak of the temple. Pay attention, it's more high from this place. And this is according to the New Testament, where the Bible, the devil took Jesus after he tempted him for the third time. So the corner in front of us, this is the pinnacle, the highest point of the temple. Of course, when the temple has been destroyed, a lot of these stones has been came down. The only remains is the Wailing Wall, which is from the west. We're going to visit the Wailing Wall after tomorrow, and the Jewish are praying to this spot over here. Next to it is the Jewish quarter in Jerusalem, and we can see the Dome of the Rock from the west, supposed to be the place of the Holy of Holies. Over there, the Seven Arches Hotel, one of the best hotels, used to be one of the best hotels in Jerusalem. We visited this morning. You can see the tombs, all the slopes of Mount of Olives, and these are all Jewish cemetery, the Church of Maria Magdalena, and down beneath at the corner, we can see the Garden of Gethsemane. So this is the view from Mount of Olives, from Mount Zion. We saw the view from Mount Zion this morning. Next to it is the Hebrew University of Jerusalem, and this is Mount Scopus, adjacent to Mount of Olives. This is an Arab neighborhood called Silwan, and down beneath is the Gihon Spring, or the city of David were located. This is the original Jerusalem, where we see in front of us over here, you see this road? All what you see, the road and down, this is the city of David, the original Jerusalem. You can see some excavation, and it was on the slopes of that mountain. At the end over there, you see the green shelter over there, the blue shoulder. This is here is the Gihon Spring. From here, they used to take the water to the city, and this is now we have a tunnel inside. In order to go down, you need to go all the slopes, and you need to enter to the city of David in order to reach this spring. Next to the spring is the Siloam Pool. Down beneath, Siloam Pool, where Jesus healed the blind person in Jerusalem. It was one of the major spots opposite to the temple. Of course, we have no temple today. We have the mosque, and this is the entrance, the triple and the double gates in front of us. This wall exactly, it was to enter to the temple. The Jewish used to enter from here to the temple. Thank you for listening, everybody. Thank you for listening. Gallicanto is the Latin word for cock or rooster crow. At this place, it was a palace for the Jewish high priest in Jerusalem. The name of this high priest is Caiaphas. Caiaphas or Caiaphas is a different pronunciation. He was the Jewish high priest in Jerusalem. And if we want to talk about the trail of Jesus, the beginning point of Jesus was the Last Supper room, where we visited. From there, he left the place and he went down all the way the Kidron Valley, and he came up to the Garden of Gethsemane. You see Maria Magdalena Church? Down beneath is the Garden of Gethsemane and the Church of All Nations. From there, he has been arrested after Judas betrayed him, and he came back all the way to this place. Again, as we told, this was the Jewish high priest palace in Jerusalem, and he has been kept here for a few hours up till the morning come, and he has been moved from here to a place called the Antonia Fortress, where Pontius Pilate, the governor of Jerusalem, used to stay. So from there, he has been judged, and he took his piece of cross and he started walking in the streets of Jerusalem, and this is what we are going to do after tomorrow. So remember good, the trail of Jesus, the Last Supper, Kidron Valley, to the Garden of Gethsemane, back to this place. From here he has been moved to the old city, enter through the Lion's Gate, and this is what we are going to do after tomorrow. What we see in front of us over here, these are steps that used to connect Mount of Olives with Mount Zion. So this is what we call the Holy Steps or the Holy Stairs. We believe that when Jesus has been arrested, he walked up to the steps before he has been brought down to the dungeon
or the prison, the sacred pit, which we're going to see underneath this church. This is the original sacred pit or the dungeon. Actually, it is a water cistern, and they rope him down in a water cistern. The Jewish were very afraid that Jesus have a lot of followers, so they was afraid that they will come to rescue him. So from here, they prop him down in this water cistern, what we're going to see down, and whenever they wanted to ask him a question, they used to pull him up, question him, and rope him down one more time to the dungeon, which is considered now the most important spot in this place. Although we have a very beautiful church, but what is original, what is it's kept it here from 2000 years is inside, and these holy steps which we are seeing here today. It was inside the border of the city. So the house of Caiaphas was inside the wall. This wall is 500 years old wall, but we're talking about 2000 years. So the city was down, as we mentioned at the top, the city of David, it was also here, all of this, and it was covered over there up till the Mount Zion. So this was inside the walls of the city of Jerusalem. From here, so they prevented, they put fence, not allowed. So if you step on this step, taking. Imagine that we have 3 million here, each one take one piece. After 50, 60 years, there will be no stones here. So not the Roman soldiers and the two Jewish ladies that they told him, you was with him, and he said, no, I never met him. And then the rooster crow, he remembered the words because Peter was telling Jesus, I'm ready to be crucified instead of you. And Jesus answered, you, Peter, tonight you will deny me 3 times before the rooster crow. So this is statue here to remind us about this event. If you want to go to the dungeon from here to the left, हम बाहर आए अभी तो ये घर होते पुराने और ख़ास तौर पे जो कैदियों को रखा जाता, तो ये बड़ी एक डिप्राइव्ड सी जगह है। इतना ज़्यादा खुशी नहीं हो रही मुझे देखकर, क्योंकि छोटी छोटी जगह होती जिसमें हार्डली एक बंदा फिट आता। ऐसी कोई खुली जगह नहीं है, मतलब कैदी को दी जाती थी। तो ये देख सकते हैं कि उस वक्त जो था कितना जुल्म होता था। तो ये जो है कैफा के, ये देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा और अंदाज़ा हमें हो जाता है। ये देखें, ये जो उस वक्त की मतलब बनी हुई है, अभी तक खड़ी है ये जगह, इसको अनटच्ड है, और कितनी खौफनाक और गंदी ये देखें नीचे कंडीशन है इसकी। आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि उस वक्त अगर इसमें मरा हुआ इंसान पड़ा रहे तो कितना गंद होगा, और ऐसी सज़ा दी जाती थी। और इसी तरह का, जैसे हम अंदर से देख के मुझे लगता है इसी तरह से गहरा कुआं सा होगा जिसके अंदर लॉर्ड जीसस को लटका दिया। कोई कसूर नहीं था जीसस का, लेकिन ऐसी जगह पे जो था कैदियों को डाला जाता है। ये देखते छोटी छोटी केव्स हैं ये उस टाइम की, तो पूरा अंदाज़ा हमें हो रहा है कि खुदावन जो थे ये लोगों को यहाँ रखा जाता। पतरस यहाँ ये जगह वो मार्क करती है जब पतरस ने लॉर्ड जीसस का इनकार किया। उसने कहा मैं नहीं जानता हूँ। हज़रत डर में आकर कई बार हम यीशु का इनकार कर देते हैं। तो मैं पतरस से रिलेट कर सकती हूँ कि कई बार हम दूसरे मज़हब वाले लोगों के साथ बैठते हैं और कन्फेस नहीं करते, डरते हैं, सोचते पता नहीं वो क्या सोचेंगे। लेकिन के साथ हाँ जी, तो कहते हैं ना मैं नहीं उसके साथ था, ये जी बिल्कुल बिल्कुल। जी ये सो है, हमें याद दिलाता है कि पतरस भी हमारे जैसा इंसान था और उसने इनकार किया। खुदावन ऐसा वक्त किसी पे ना। और इसके बाद जो था पतरस बहुत फूट कर रोया, और खुदावन ने फिर से जो अपनी इसके साथ जो था रिलेशनशिप को रिस्टोर किया, जिसके लिए हम जाते हैं जहाँ खुदावन का खादिम जो मछलियाँ पकड़ने लगा फिर से कामों में लग गया अपनी दुनियावी, लेकिन खुदा ने चुना था इसे और अपने जलाल के लिए उसने इस्तेमाल किया। ये सामने हमारे तस्वीर है, जो ऊपर वो तस्वीर ही बनी हुई है जीसस को जिस तरह से रस्सियाँ डालकर घसीट कर लेके आए। और ये जो होली स्टेप्स हैं मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ी सी। ये वो स्टेप्स हैं जहाँ से खुदावंद जी को पकड़ कर लाए थे, एक क्रिमिनल की तरह, एक कैदी की तरह, लेकिन फिर भी जीसस ने अपना मुंह नहीं खोला। ये वो होली स्टेप्स हैं जिसको आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे जीसस। हालेलुया जीसस, हमें तो अपनी जैसी पेशेंस दे, अपना सब्र और तसल्ली दे खुदावंद, कि हम बर्दाश्त कर सके। ये देखे जैसे खाने के बाद खुदावंद यीशु मसीह निकल आए वहाँ से, यूहन्ना की अंजील में लिखा हुआ है आफ्टर सपर जीसस लेफ्ट द अपर रूम। मैं ज़रा क्लोज़अप करके आपको दिखा देती हूँ।
अपने शागिर्दों के साथ वो अपर रूम से आए और किडरन वैली जिसको हमने अभी आपको दिखाया वहाँ से होते हुए ये यहाँ पहुँचे। और देख सकते हैं जीसस जैसी खिदमत इंसान की कोई नहीं कर सकता, आज तक नहीं किया और ना कभी कर सकेगा। यहाँ बहुत सारी नेशनैलिटीज़ के लोग हैं, आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तेरे लिए क्या कुछ ना किया, हो जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, आई जीवन में खुशी पाई अपनी जिंदगी, तूने जिंदा शाफिया अपनी खुशी मुझे दी, आई जीवन में खुशी पाई अपनी जिंदगी। Behind you. Oh, is it? Beside you, yes. See, there's another one. There's another one. एक और है, इसमें भी मिनिस्टर जा रहा है। ये पूरी सिक्योरिटी है जेरूसलम में इस वक्त, आप देख सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, हमें ये नहीं पता कौन से मिनिस्टर हैं, बट लेकिन यहाँ हाँ जी, ये देखे भी मिनिस्टर जा रहे हैं गाड़ी में, उनके साथ सिक्योरिटी है, पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है। ये देखे सिक्योरिटी आगे Maybe, maybe this is Netanyahu, maybe. हाँ, हो सकता طالع है, من بيته بجوز. हो सकता है प्राइम मिनिस्टर जा रहे عقليهم हैं। تشوف. हाँ, हो सकता है बेंजामिन नेतन्याहू जा रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं। हमारा कैमरा कोशिश तो कर रहा है सारा कुछ रिकॉर्ड करने की, लेकिन हम गेस कर रहे हैं कि मिनिस्टर जा रहा है। बहुत ज्यादा सिक्योरिटी, बड़ी बरकत दे। इस वक्त जो है ये यरूशलेम में देख सकते हैं कि पूरी सिक्योरिटी के साथ आगे बढ़ रही है गाड़ी, और हम बहुत गीत गा रहे थे, ज़बूर गा रहे हैं, मज़ामीर गा रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत ही ज्यादा रूहानी बरकत मिल रही है। वो जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मुझसे प्यार किया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की, तूने मुझसे प्यार किया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मुझसे प्यार किया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की, तूने मुझसे प्यार किया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। Our Lord Jesus Christ, as you see, there is the beginning of the preparation for the Christmas is already started. It will be ready after 10 days from now. All these lighting, the Christmas trees, the Papa Noel you can see on the different roads on the major road. It's preparing ourselves to start the celebration of the Christmas, which take place on the 24th of December. So it's a special period that we are here at the house of David, and we believe that Jesus also from the house of David. So Bethlehem is the city that located 11 kilometers southwest of Jerusalem, known as the house of bread. Beit means house, Lechem means bread, the house of bread. This is today Bethlehem is under the control of the Palestinian Authority,
and it is the most important Christian Palestinian city, and it's the most important city in the world. Over there you can see the bell towers, and you can see the Church of the Nativity. We are gonna visit this place. We're gonna visit the Star of Bethlehem, marking for us the birthplace of Jesus. But before that, we are going to descend down to the Shepherd Field. Shepherd Field, this is the place where the first people has been announced about the born of Jesus. So we're going to leave the city and descend down into the valley to the village of Beit Sahur. Beit Sahur is 1 kilometer east of Bethlehem, where these shepherds used to stay guarding their goats, their sheep, their flocks, when the angel of the Lord appeared to them in the middle of the night, announced them to follow the Star of Bethlehem. And the place where the star stopped, this is the place where the king was born. Hallelujah. 2,000 years back. Hallelujah. So imagine that we are from 2,000 years, we are celebrating this Yes, Lord. event. Hallelujah. We are waiting for that from year to year to come. So this is a special period, friends, that we are here in this period of the year, preparing ourselves for the most important event in the world, the Amen. born of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. So we're gonna receive the annunciation, and then afterward we're going to climb up to visit the cave and the Basilica of the Nativity, marking the birthplace. Today, Bethlehem is almost 60% is Christians, and the others are Muslims. We used to be here more than 95%. Unfortunately, because of the situation, a lot of immigrants left it Bethlehem and they are abroad, but they came back always to their roots. So the major income in Bethlehem, as you see, is the tourism industry. This is the reason we are always encourage the people to make their shopping from Bethlehem, to buy these olive wood handmade ornaments, especially for the Christmas tree, the nativity sets, because this is all original made in Bethlehem by the Christians, that they took their profession generation next to generation. This is the reason you can see a lot of souvenir shops, a lot of hotels, a lot of restaurants. Usually we used to stay at Bethlehem, and our hotel used to be exactly like maybe 20 meters away from the Nativity Church. This time we do have in Jerusalem because it is a small number group, so they put us in Jerusalem, and also Jerusalem is very good place, but usually we are staying at Bethlehem, the hometown of our Lord Jesus Christ. मालिकुल जहां का हम उसे सिजदा करें, हम उसे सिजदा करें, हम उसे सिजदा करें। रामामू खुदा से खुदा है, नूर से सच्चा नूर है, जो मरियम कुंवारी से है मजूर। हुआ है मुजस्सिम, हम उसे सिजदा करें, हम उसे सिजदा करें, हम उसे सिजदा करें। रामामू है सारे फरिश्ते खुश होकर ललकारो, आसमान के बाशिंदों सब शामिल हो। आलमे बाला पर हम जो खुदा की, हम उसे सिजदा करें, हम उसे सिजदा करें, हम उसे सिजदा करें। रामामू
खुदावंद मसीहा आज तू पैदा हुआ, मुबारक मुबारक हो तेरा नाम। बाप का कलाम हुआ है मुजस्सिम, हम उसे सिजदा कर, हम उसे सिजदा कर, हम उसे सिजदा करे राम नाम। बोलो यीशु मसीह की, खुदावन यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हालेलुया। कोई दुआ करना चाहता जल्दी से दुआ करे। खुदाम तेरी तारीफ, तेरी हमदो हालेलुया इस जगह के लिए जो तूने खुदाम हम सबको ये मुमकिन किया और इकट्ठा किया और यहाँ लाया। खुदाम हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरे नाम की जय जयकार करते हैं कि तूने आसमान को छोड़ा और जमीन पर उतर आया ताकि हम लोग खुदाम तुझे देख सकें और नजदीक से तुझे छू सकें। हालेलुया। तेरी तारीफ और तेरी सारी बरकत के लिए, तेरे फजल के लिए खुदाम, तेरी अनगिनत नेमतों के लिए खुदाम तेरा शुक्र हो। ग्लोरी टीवी के लिए तेरा शुक्र हो, पैम सरफराज के लिए तेरा शुक्र हो जिनको तूने ये खिदमत दी। ये सबसे बड़ी खिदमत है। थैंक यू जीसस। खिदमत को सदा 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 बहाल रखना। आमीन। नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। एक बार फिर यीशु मसीह की खुदावंद मसीहा आज तू पैदा हुआ, मुबारक मुबारक हो तेरा नाम। बाप का कलाम आज हुआ है मुजस्सिम, हम उसे सिजदा करें, हम उसे सिजदा करें, हम उसे सिजदा करें राम। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। Threshing floor, they used to leave some on the threshing floors for the poor people to come to collect. And she came here, she started work in the fields, and she saw Boaz. Boaz was a young, strong man. And he used to own his own threshing floor, and he used to work with the people, with the farmers over there. And she convinced him, and they was like a relation, and they got married. And they are the grandfather of King David. And this is the reason we say that Jesus came also from the house of David. Because 3,000 years back, David was born here, and 2,000 years Jesus was born Hallelujah. here. Hallelujah. So if we are talking about shepherds, friends, the shepherds, we imagine today that shepherds are old men with their stick, they cannot move. Look, this was not like. Shepherds used to be strong men, and you can see here we have a statue, we have sculpture about a shepherd and about God. This is the handmade from one of the Christian families of Bethlehem. They are very professional carved. Now we are going to go to the souvenir shop and you can see this. This is all handmade. You don't need to buy. You can also look because it is very special. You cannot find any place all over the world. So a shepherd, he used to be a strong man. He used to have his equipment. He need to have his stick, he need to have his flute, he need to have his sling, he need to have his kafiyah, and he need to have to protect himself from the heat, from the cold, from the wild animals to attack. And this was here. The shepherds, the Jewish shepherds, they were very, very, very difficult profession for them, very difficult, because they used to work hard. Why? Because some of these goats and flocks and sheep from this area, they used to take to sell at the temple in Jerusalem for sacrifice. During the Jewish festivals, they're taking. So this animal, it shouldn't be having any scratch, any hurt, any attack, because it's very pure. So these people used to work hard. And we do have two kinds of shepherds. We have the goat shepherd and the flock shepherd. The goats, you know, the goats is different. The sheep having wool covering their skin, and the goats having hair. So the goat shepherds, they need to work harder than the goat, because the goats, they are spreading one here, one there, one up down. Wow. Right? The sheep, you already only is enough for you to teach the elder one to go in front of you, and all there will follow. And this is will let us understand that King David was a goat shepherd. He was not a flock shepherd. Why we understand that? Because of his sling. So he used to have this sling,
And when the goat go far away, he threw a stone with his sling in front of her. She will be afraid and she will come back. It will come back to him. So this is the reason that the shepherd of the goats, they used to have the slings. And David was a goat shepherd. He was not a sheep shepherd over at this area acting before 3,000. He might also was coming to this field on the other side of Bethlehem. So this is the place. Imagine that we don't have houses over here now. You can see plain fields, and before the harvest, you can see like a green carpet blooming. When the wind will blow, it will go to the right and to the left hand side, and you don't have more beautiful place than this place. It's a very special place. Amen. Especially that we are receiving the annunciation like the shepherd. We are getting the news, and then we are going up to visit the birthplace of Jesus. Now, Esau, you were born here in Bethlehem? Actually, I live in Bethlehem. I was born in Jerusalem. Oh, you were born in Yes, Jerusalem? in Jerusalem. Okay. Okay, how do you feel living in Jerusalem? I mean, in Bethlehem? You cannot imagine. It is actually in Bethlehem we are like a small society. Everybody knows each other. We have a good relation, especially during these places. Now in the Christmas period, it's a family time. Everybody visit each other. They are preparing the meals. They are Merry Christmas to each other, celebrating the masses in the different churches. We have a good connection. So it's a very small time. We like it too much. We hope that the peace will happen at this land. Amen. And all people could live together, and all the immigrants that they left at this city, they could come back. Isa, Because- what percentage of Christians are actually living here, surviving here today? Listen, if you will talk about Bethlehem itself, we do have like 30% Christians. But if we want to talk about the district around, we have Beit Jala and we have Beit Sahur, 3 villages. So you're talking about like 60 to 55%. They are Christians, and our Muslims rather are living and sharing, living with us over here at this area. Actually, we used to be like 95%, but because of immigration, starting from the time of the Ottomans and continue during the history, because a lot of obstacles, difficulty of living, and all they are established some roots, especially in Latin America, in Chile, for example. From my village, we have here 15,000 living here. In Chile alone, from my village, we have 260,000 people over there. This is the 6th generation. Wow. Yes. So, So do you see people coming back? Like you said, it's our prayer that people that have moved out. Listen, I believe that if the situation will be 100% good, a lot of people will will come back. But if it's still like this unstable situation, war, violence, closer, the wall, the separation wall, look, this is part of the separation wall, obstacles, even the people, they cannot go to Jerusalem for worship. So it's very difficult situation here. We hope that it will be a peacefully and it will be reopened again and people... We have a sign of peace here, the cross. Yes, And we it's look to it. everywhere. Amen. Everywhere in Bethlehem you can find the crosses. Amen. Not only on the churches, also on the houses, because the cross is our slogan, the slogan Amen. of the Christianity, and without the cross we cannot live. Yeah. Thank you. बड़ी अच्छी बात हमें यहाँ सीखने को मिलती है कि यूजुअली हम देखते हैं कि जो चरवाहा है उसको हम समझते हैं कि बड़ा बुजुर्ग सा हो, बड़ा फेंट सा, बड़ा ऐसे, लेकिन बोएज की बात करते हैं जब ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं तब बोएज जो था, ये जो नीचे वाली जगह है, इस जगह पे जो था खेत होते थे उसके, ठीक है, बाली, वीट की कहते थे, जौ ते कनक है ना, तो सिट्टे, हाँ जी, वो थ्रेशिंग फ्लोर, और वहाँ उसकी मतलब बट देसी सफाई कर देसी, झाड़ देसी, बिल्कुल फसल जो थी करते थे। तो जब जीसस पैदा हुए तो ये जगह जो है मार्क करती है इस बात को भी। और दूसरा जो शेपर्ड्स फील्ड जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ गडरिए अपने जानवरों की रखवाली कर रहे थे, और जैसे अभी हमने अंदर गीत गाया और बहुत प्यारा चरनी का हमें सीन भी मिला। और इसी तरह से यहाँ उस रात जो आसमान से फरिश्तों का गढ़, इस जगह पे ऊपर सारे इमेजिन करें फरिश्ते ही फरिश्ते थे, और आकर कहने लगे कि आज जो है दाऊद के शहर में एक निजात दहिंदा मुक्तिदाता पैदा हुआ है, जाओ उसे जब जाओगे तो आप देखोगे क्या चरनी में पड़ा हुआ पाओगे और कपड़े में लिपटा हुआ। और इसी तरह से ओ हरबशंदर है अपनी वो सारा कुछ छोड़कर यहाँ से बिल्कुल अब थोड़ी सामने अगर ये पेड़ ना रास्ते में हो मतलब हमारे, तो हम देख सकते हैं जहाँ हम खुदा यीशु मसीह पैदा हुए। तो
इमेजिन करें गडरिया अपना सारा सामान सब कुछ छोड़कर उस तरफ चल पड़े और खुदावंद यीशु मसीह के दर्शन करने के लिए। और इसी जगह पे, क्योंकि ये जो क्रॉसिंग है यहाँ से डेजर्ट में ले जाती है आपको, मतलब दूसरे मुल्कों में जा सकते हैं और यहीं से ही जो है यरूशलेम की तरफ हम जा सकते हैं। तो ये जो क्रॉस वे था, लोग मेरे कैसे गूज़बम्स हो रहे हैं सोच के, यू नो, एंड दिस इज अ क्रॉसिंग, वेरी फोकल पॉइंट है जो, तो इसलिए जो थे खुदावंद को दर्शन करने के लिए जो मजूसी थे, वाइज मैन थे, वो भी यहीं पे आए एंड ऑफ कोर्स दे वेंट एंड यू नो उन्होंने अपने जो गिफ्ट्स देने थे। सो जी स्टोरी है इस जगह दी है गडरिया दा, मतलब शेपर्ड्स फील्ड ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। और जो चर्च ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਪਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੰਬੂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਖਿੜਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੇਵ ਸੀਗੇ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੈ। तो लोग अपने जानवर उत्थे रख दिंदे सी और जेडे अंदर तुसी खाने देखियो समझो उन्हां दी कबर्ड्स हुंदियां सी अपनी चीज़ां रखण वास्ते, ठीक है। ओके, तो ये है शेपर्ड्स फील्ड एंड इट्स अ लवली डे टुडे। और इमेजिन करो खेतीबाड़ी बॉयज कर रहे होंगे और कितनी अच्छी धूप होगी, है मैरी क्रिसमस फ्रॉम बेथलेहम। क्रिसमस ट्री लग चुका है, आपको पता है कि हम यहाँ स्टोर पे आते हैं, ये क्रिश्चियंस का स्टोर है और हम अपने सोवेनियर्स गिफ्ट यहीं से ख़रीदते हैं। और ये प्यारा, बहुत प्यारा नेटिविटी का सारा सीन है। गॉड ब्लेस करते हैं हम, खुदा हमें यहाँ लेकर आया। और जैसे कि क्रिसमस का वक्त बहुत खुशी का वक्त होता है। और ये देखें ब्यूटीफुल आर्क ऑफ द कॉन्वेंट जो हॉलीवुड से बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। और क्रॉसेस जब भी आप हमारे साथ आएँ ग्लोरी टीवी के टूर में, तो हम आपको यहाँ लेके आते हैं और आप जो लेना चाहें ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बरकत मिलती है। हालेलुया। जिन्हें क्या ले रहे हैं आज आप? Cross. क्रॉस ले रहे हैं। Have this cross because you told me that story. ओके So I want to have this one. तो ओके, आप क्रॉस ले रहे हैं। और भी मैं देखूँ क्या लिया आपने? Yeah. हाँ जी, I got this holy water just to give gift, ठीक you है, know, on gift देने के Christmas लिए। time. ओके, And this card hanging. रोजरी ली है आपने, cross, ठीक है। And I love to have it for myself as ओह a keyring. यस, डेफिनेटली। Because it's Bible. मेरी डॉटर भी कलेक्ट करती है तो Yeah. मैंने उसके लिए भी लिया है। हाँ, मिनी बाइबल है, उसमें इंग्लिश में है ना। बहुत सारी वैरायटी है, सब अपनी अपनी पसंद की चीज़ें ले रहे हैं। ये देखें, ये लंदन जा रही हैं क्रॉसेस, बड़े फुल साइज़ की हमारी सिस्टर ने ली है। गॉड ब्लेस यू। और भी बड़ा प्यारा सामान है यहाँ। आई लव दिस, ब्यूटीफुल। ये देखें, कुछ सेपरेट, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। सारी हॉलीवुड की बनी हुई है। ये देखिए मछलियाँ और रोटियाँ, वेरी प्रिटी। इसकी कीमत आप तक को दिखाऊं, दैट्स नॉट बैड एक्चुअली। पांच रोटियां और 2 मछलियां वाला मिरेकल लॉर्ड जीसस ने किया था, ये यहाँ है। और इस तरफ भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखें। सबके लिए चाय बनी हुई है, ये पड़ी है यहाँ, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, ये बहुत प्यारी है। ये देखें, खुदा यीशु मसीह का वो जो उन्होंने फिगर बनाया हुआ है, वो खिदमत कर रहे हैं, पाउंड हो रहे हैं शागिर्दों पे जब ये रस्म हुई। तो ये चीज़ें जब अपने घर में रखते हैं तो हमें सचमुच बाइबल की बातें याद रहती हैं और बड़ी ह्यूमिलिटी इंसान में पैदा होती है जब ऐसी आप रिलीजियस चीज़ें अपने सामने रखते हैं, स्क्रिप्चर सामने रखते हैं, तो सचमुच बाइबल जो है हमें याद कराता है सच्ची बातें। सिस्टर कमलजीत, तुसी की पसंद किया? मैं 9
ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੀਲਿੰਗ ਕ੍ਰਾਸ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜੀ, ਜੀ। ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, In the ਬਿਲਕੁਲ। name of ਔਰ Jesus. ਮੈंने ਬਲਕਿ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ Yes. ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਡੋਂਟ ਬੀ ਅਸ਼ੇਮਡ, ਕ੍ਰੋਸ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਕ੍ਰਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਹਾਣੀ, ਕ੍ਰਾਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਮੀਨ ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਹਜ਼ਾरों ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। Amen. ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਸ਼ਾਪਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ। ज्वेलरी के लिए भी बहुत वैरायटी है और ज़बरदस्त यहाँ चॉइस है। आई ऑलवेज लाइक दिस प्लेन वन, मुझे बहुत पसंद होता है। आई थिंक आई एम गोना गेट वन अगेन टुडे। इट्स रियली नाइस। बहुत प्यारी चीज़ है। थैंक यू लॉर्ड। Yeah, because you live in England. Because you live in England, you live in England. Yeah. For this reason, easy to come. Yeah, that's right. Pakistan direct. ये हमारे ग्रुप की तस्वीर है जब हम आए थे लास्ट टाइम। बेथलेहम में खड़े हैं और ये सुवेनियर शॉप है, गिफ्ट शॉप है जहाँ हम सारे आते हैं। एज यू कैन सी Isa is relaxing as always. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas everyone. Merry shopping हो गई। Very good. Did you Merry Christmas? होगी shopping all done? Yes, lovely Christmas tree as you can see. Thank you. Bye bye. We are here in Manger Square और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे आए हुए हैं टूरिस्ट और हमारे सारे अजीज़ टीम जो है पहुंच रही है। हम टैक्सी में आए, जो नहीं चल सकते उनके लिए टैक्सी प्रोवाइड की जाती है और बहुत अच्छा माहौल है। ट्री लग चुका है, दिसंबर का महीना है, 2 दिसंबर और बड़ी खुशी हो रही है यहाँ सारे खड़े होकर एज यू कैन सी। और अभी रिसेंटली जो पोप ने भी यहाँ विज़िट किया, बहुत अच्छा लगा। और ये हमारे पीछे चर्च है। हाँ जी, पहुँच गए, ड्रीम कम ट्रू। हाँ जी, बात करें। Thank you very much, ma'am. Thank you very much. बस ये शुक्र शुक्र अदा Very nice. आसान हो गया ना, चलना ही पड़ा। बड़ा अच्छा लगता है कि सारे God bless you. और बड़ा अच्छा लग रहा है जो ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਸ ਅਸੀਂ Praise the Lord. ਯਾਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल। ਖੁਦਾਮ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ठीक है, मैं अंदर ਖੁਦਾਮ ਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ Amen. Praise the Lord। बाकी की टीम भी जो है आ रही है और इस वक्त हम बेथलेहम में जैसे देख सकते हैं हमारे सामने बहुत बड़ा ग्रुप है, तस्वीर निकाल रहे हैं। यहाँ खड़े होकर हम ग्रुप तस्वीर भी लेते होते हैं और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस। बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। ये देखें सारे जो यहाँ के शहरों के नाम लिखे हुए हैं, बैनर उठाए हुए, इजिप्ट, इजराइल, पैलेस्टाइन या जॉर्डन, सब लिखा हुआ है इसके ऊपर। इस वक्त हम एंटर हो रहे हैं जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए। हम सारे मिलकर अंदर जा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी रश है और काफ़ी देर से हम इंतज़ार करें। ये छोटी सी एक एंट्रेंस है और काफ़ी ये स्टेप्स देख लें जहाँ पे हम खड़े हैं, काफ़ी स्लिपरी भी हो जाती है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। तो अब हम अंदर जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ अंदर आएँ और बड़ी खुशी हो रही है, सबको साथ लेके जा रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। The birthplace of Jesus. Over there is the manger. Please, one by one, don't
Pay attention that we have oil lamps inside. Wait. One by one, please. One by one, please. ये स्टार ऑफ बेथलेहम है और एक एक करके जो है हम जो गिफ्ट भी लेके आए क्योंकि क्रिसमस का महीना है जो गिफ्ट देने हैं स्टोर से लिए हैं तो उसको वहाँ छू करके लेके जा रहे हैं अनॉइंट करके ताकि हम अपने जो फ्रेंड्स हैं फैमिली को दे सकें। यहाँ खुदा यीशु मसीह पैदा हुए थे, माँ मरियम यूसुफ यहाँ स्टेपनी में यहाँ रखा था, बेबी जीसस का जन्म हुआ था। जल्दी जल्दी कर लें प्लीज़। थैंक यू। हाँ जी जल्दी कर लें। गिफ्ट जो है लेके आए हैं हम उसको यहाँ छू रहे हैं, टच कर रहे हैं ताकि बहुत बरकत मिले। जो भाइयों के कपड़े हैं हमसे सजदा करे, हमसे सजदा करे राम खुदावंद मसीहा आज तू पैदा हुआ, मुबारक मुबारक तेरा नाम। बाप का कलाम आज हुआ है मुझसे, हम उसे सिजदा करें, हम उसे सिजदा करें, हम उसे सिजदा करें है सारे फरिश्ते। पूरा बैग रख लें। तो कर्णकारों आसमान के बशिंदों सब शामिल हो, आलमी बाला पर हम दो खुदा की, हम उसे सिजदा करें, हम उसे सिजदा करें, हम उसे सिजदा करें खुदावंद मसीहा आज तू पैदा हुआ, मुबारक मुबारक हो तेरा नाम। बाप का कलाम पूरा बैग रख दे हुआ है मुझसे, हम उसे सिजदा कर, हम उसे सिजदा करें, हम उसे सिजदा करें, सिजदा करेगा। बहुत खुश हूँ खुदावंद की कि ये खाली जगह आज हमें मिली और काफ़ी बड़ा ग्रुप था, बहुत बिजी थे पर सारे आराम से आज हमें मौका मिल रहा है। यूजली बहुत रश होता है तो चरनी के पास हमारी बहनें बैठी हैं, सब विज़िट करके आ रहे हैं। यही वो केव थी जहाँ खुदावंद जी हमारे पैदा हुए और माँ मरियम ने बेबी को संभाल के रखा, जो हमारा मुक्तिदाता निजात दहिंदा हालेलुया पैदा हुआ। उस रास्ते से आते हैं, वहाँ से सीढ़ियाँ हैं, एंट्रेंस है, फिर यहाँ हम सजदा करते हैं और इस तरफ से जो है फिर हम बाहर जाते हैं। और बहुत सारी ऑयल लैम्प्स हैं तो ये जलती हैं। हाँ जी बहुत पुरानी है जैसे बता रहे हैं हमारे गाइड। और ये बड़ी बाकी से ये बड़ी पकीज़ा जगह है। खुदा बाप खुदा बेटे खुदा बाप पुत्र शुक्र गुज़ारी को हमारा क्रिसमस खुदा बड़ा ब्लेसिंग वाला हो और खुदा जिस तरह बहुत जल्द हम वापस आए। मैं हमेशा कहती हूँ खुदा हमें जल्दी वापस आए थे तो उस वक्त फ्रंट साइड पे रिपेयर हो रही थी, आज हमने साइड से एंट्रेंस ली है और इसकी रेनोवेशन चल रही है। आप देख सकते हैं स्कैफोल्डिंग सब जगह लगे हुए हैं और इसकी रेस्टोरेशन हो रही है। बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि इसकी जो रूफ थी काफ़ी लीक कर रही थी, जब हम देखते थे तो बड़ा तो ये देखिए अब इसकी मुरम्मत चल रही है। खुदा की शुक्र से हम इबादत कर सकते हैं। ये देखें ग्रुप फोटो जो हमने अभी बनाई।
हम चर्च के बाद अंदर I यहाँ already have for 3 pictures now. I need for more 3 pictures. لا ما هذا المسؤولي. Okay, for more 2 pictures. रिपेयर चल रही है, आप देख सकते हैं कि रेस्टोरेशन हो रही है, रूफ की और विंडोज़ जो है रिपेयर हो रही हैं। तो यूजली हम यहाँ से इस तरफ से हम जाते होते हैं, लेकिन इस वक्त जो है यहाँ मरम्मत हो रही है चर्च की और सब काम कर रहे हैं और इतना रश है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मतलब जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा मौका मिला कि हम वहाँ खड़े हो सके और आराम से विज़िट कर सके। एज यू कैन सी दिस लॉट ऑफ ग्रुप्स आर कमिंग। We used to go in a Palestinian road avoiding Jerusalem called the Kidron Valley Road, part of the Kidron Valley, and from there we are descending down to the Judean desert. But today, since we are in Jerusalem, we are not using this road. Last time Pam, we used it. Yes, we were did. together. It was Yes. very nice part of the Kidron Valley. You can see part of the fence to the right hand side, and this is part of the separation wall. Here in this area is a fence, it's not a wall anymore. This is trying not to change the topography and the geography of the area, since it's natural and it's a wilderness valley, so they are not putting concrete. In another area we can see concrete like just this morning when you enter through a gate. To the left and to the right it was concrete, so this is part of the fence between the Palestinian territories and the state of Israel. Of the West Bank. And again, Bethlehem is a region, it's not a district. This is also Bethlehem, remind us about the story of Jacob when he came with Leah and Rachel at Bethlehem to the land of the Ephratah, and when his wife Rachel died on the entrance to Bethlehem while she was putting her youngest boy Benjamin. So it's biblically, usually we used to visit Rachel tomb, but unfortunately now it's after it's separated by the wall, we need to have a permission from the authorities, and you need to go from the other side, from Jerusalem area, to visit this tomb. So we're still in the valleys of Judah and the tribe of Judah, even in Jerusalem. So we are right now out of Bethlehem. We have this checkpoint in front of us, taking us outside the Bethlehem district, means we are in Israel one more time. Go right in, please, about 6 or 7 of you. It's okay. देख सकते हैं गार्डन टूम जहाँ खुदावंद यीशु मसीह को रखा गया था सिर्फ 3 दिन के लिए। ऐ मौत तेरा डर कहाँ गया? खुदावंद यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया। ये कि ये कब्र खाली है। हालेलुया। यीशु के अलावा सबकी कब्रें अभी तक उसमें मुर्दा पड़े हैं, हड्डियां पड़ी हैं, लेकिन यीशु की कब्र खाली है। हालेलुया। जोर का नारा लगाएं, जो बिलीवर हैं, ईमानदार हैं, वो कहें यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। जीसस इज अलाइव। हालेलुया। जीसस इज अलाइव। जब हमारा खुदा जिंदा है तो हम भी जिंदा है। हालेलुया। यीशु हमेशा के लिए जिंदा है तो हम भी हमेशा के लिए जिंदगी पाए हुए हैं। अब अजीज़ों, हमारे पास मौका है, ये इतना खूबसूरत गार्डन है, पूरे एविडेंस आपको मिलते हैं कि यही जगह है जहाँ खुदा यीशु को रखा गया था। लेकिन अब वो क्या करता है, वो हमारे अंदर रहता है। अब हम उसकी हैकल है, वो हमारे साथ उठता बैठता है। इसलिए उसने कहा कि जो उसका बदन था हमारी खातर तोड़ा गया, जो लहू था हमारी खातर बहाया गया। जब हम होली कम्युनियन लेते हैं, हम कन्फेस करते हैं, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह, खुदावंद तूने सचमुच अपने इकलौते बेटे को हम मेरे गुनाहों की खातर कुर्बान किया, इसलिए मैं उसके बदन को लेती हूँ ताकि मैं भी हमेशा के लिए जिंदा रहूं और तेरे लहू को पीते हैं ताकि हम पाक, साफ और रास्तबाज ठहरे।
ठहराए जाएं। सो अपनी अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, अपनी अपनी ज़िंदगी पे सोचें, गौर करें। होली कम्युनियन लेने से पहले क्या सचमुच आप हकदार हैं यीशु के बदन में? क्या सचमुच आपका हक है यीशु का लहू आपके अंदर जाए? हम डिजर्विंग नहीं है, हम डिजर्व नहीं करते। इसको कहते हैं फजल खुदा का, रहम खुदा का, प्यार खुदा का, तरस खुदा का। हालेलुया। हम अपने आप को तैयार करते हैं। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक को तेरा शुक्र करते हैं लॉर्ड जीसस। सचमुच हम तुझ पर ईमान लाए हैं और हमने हमेशा की जिंदगी पा ली है खुदा। तेरा शुक्र करते हैं खुदा, जैसे तू कब्र में नहीं रहा, हमारे भी जिस्म इस तरह खुदा नहीं रखे जाएंगे, बल्कि हमेशा के लिए हम तेरे साथ मिल जाएंगे। बाप तेरा शुक्र करते हैं जो मौत की सजा इंसान पे आई थी उसे तूने खत्म कर दिया। तूने कहा है मौत तेरा डंक कहाँ गया? खुदा तूने मौत को हरा दिया। तेरी फतह को मनाते हैं इस गार्डन में खुदा। जब हम खाली कब्र में से होकर आए हैं, हमने देखा है खुदा जैसे शागिर्दों ने तेरी शुक्रगुजारी की और तुझसे मिले, हम भी खुदा तेरी शुक्रगुजारी करके तेरे बदन में शामिल और शरीक होते हैं, तेरे लहू को अपने अंदर लेते हैं खुदा, ताकि हम रास्तबाज ठहराए जाएं, ताकि हम तेरे बेटे और बेटियां हमेशा बने रहे। ऐ बुजुर्ग बाप, जो तूने खुदा अपने बेटे के हाथों पे कील ठोकने दिए खुदा, जो मुझे लगने चाहिए थे, जो उसकी एडी पे खुदा कील ठोके गए खुदा, वो मेरी सजा थी, लेकिन तेरा शुक्र करते हैं खुदा कि तूने सारी सजा अपने ऊपर लेके हमें आज़ाद कर दिया। बाप तेरा शुक्र करते हैं इस मेज़ के लिए, इस रोटी के लिए, इस शीरे के लिए खुदा। हम इसे लें और खुदा तेरे गवाह ठहरे, तुझ में खुदा जिंदगी पाए और हमेशा की जिंदगी पाए, यीशु के नाम में आमीन। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली और शुक्र करके कहा कि इसको ले लो, आपस में बांट लो, क्योंकि ये मेरा बदन है। इसी तरह से शीरा भी लिया और कहा ये मेरे खून में नया अहद है, जब भी तुम इसे पियो मेरी यादगारी में इसी तरह से किया करो। कोई शुक्रगुजारी की छोटी सी दुआ करना चाहे तो अब मौका है। दुआ करना चाहे कोई। हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति प्रशंसा धन्यवाद 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 धन्यवाद। तमाम स्वर्गीय उत्तम आशीषों के देने वाले, अत्यंत दयालु, अत्यंत अनुग्रहकारी, जीवित सच्चे महान और सामर्थ्य सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सृष्टि के स्वामी, इस सृष्टि के रचने वाले, इस जगत के पालनहार, तारनहार, कभी ना बदलने वाले ईश्वर, तू जो कल था, आज है, सदा रहेगा। तू जो आदि है, तू अंत है, तू अल्फा है, तू ओमेगा है, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और सच्चा बादशाह है। सिर्फ तू एक ईश्वर है मेरे परमेश्वर, तुझे छोड़ कोई दूसरा ईश्वर नहीं। सारा मान सम्मान आदर महिमा तेरा था, तेरा है और युगानुयुग तेरा ही रहेगा यीशु राजा। तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी की तूने हमें तमाम उत्तम वस्तुओं से तृप्त किया है पिता परमेश्वर, जबकि पिता परमेश्वर तू स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है, ये पृथ्वी तेरे पैरों की चौकी है मेरे प्रभु। लेकिन प्रभु जी तेरी सामर्थ अद्भुत है प्रभु पिता परमेश्वर, तेरी समझ अद्भुत है प्रभु जी, तेरी दृष्टि इस पृथ्वी पर सदा बनी रहती है मेरे पिता परमेश्वर, और तू अपने बच्चों पर सदा अनुग्रह करता है। तू वो ईश्वर है पिता परमेश्वर जो विलंब से क्रोध करता है और अत्यंत दयालु, अत्यंत अनुग्रहकारी है पिता परमेश्वर। तूने हमारे पापों के को अपने ऊपर ले लिया पिता परमेश्वर। तू बेऐब बर्रा था, लेकिन पिता परमेश्वर तूने हमारी खातिर पिता परमेश्वर तकलीफ उठाई। तूने पिता परमेश्वर सलीबी मौत सही, जबकि उसके हकदार हम थे प्रभु जी। तेरा अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु जी तुझे धन्यवाद
देते हैं। धन्यवाद 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 प्रभु जी, तेरा धन्यवाद हो कि तूने हमें प्रभु जी इस योग्य बनाया कि हम उस पवित्र धरती पे आ सके जहाँ पिता परमेश्वर सारे नबी आए। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर इस अवसर के लिए जो तूने हमें दिया है। पिता परमेश्वर ये जीवन जो तूने हमें दिया है तेरी महिमा के लिए सदा सर्वदा इस्तेमाल होता रहे मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी इस ग्रुप के लिए जो यहाँ आया है। पिता परमेश्वर इस ग्रुप पे तेरी बड़ी आशीष हो प्रभु जी। हर एक आत्मा प्रभु जी तेरी महिमा के लिए जी और तेरी महिमा के लिए कार्य करे पिता परमेश्वर। और प्रभु जो वसीला तूने हमें यहाँ लाने के लिए बनाया है पिता परमेश्वर, उस वसीले को तेरे पवित्र लहू में ढाल देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस मिनिस्ट्री में कभी कोई कमी घटी ना आने पाए पिता परमेश्वर, और कोई काम कभी रुके ना पिता परमेश्वर। सारे बंद दरवाजे खुल जाए पिता परमेश्वर, सारे सख्त दिल नरम हो जाए मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो इस आत्मिक भोजन के लिए प्रभु जी। तेरा धन्यवाद हो तेरे पवित्र देह के लिए। तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर तेरे लहू के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो कटोरा हमने पीना था वो तूने पिया है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तू वो ईश्वर है जो हमारी तमाम जरूरतों को जानता है, लेकिन तू हमारा स्वर्गीय पिता है। तू चाहता है कि तेरी औलाद तेरे बच्चे तुझसे मांगे। इस विनती को हम यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं। तू सुनो कबूल कर मेरे प्रभु। आमीन। दुख मेरा भला तेरा किया तूने मुझे प्यार। दुख मेरा भला तेरा किया तूने मुझे प्यार। मारा पीटा मुँह पे थूका, मारा पीटा मुँह पे थूका, दिए ताने बेशुमार। दुख मेरा बना तेरा किया तूने मुझे प्यार। पाप मेरे हुए क्षमा, पाप मेरे हुए क्षमा। पहला कांटों का तूने ताज। दुख मेरा भला तेरा किया तूने मुझे प्यार। मेरी झोली भारी भारी, मेरी झोली भारी भारी। तेरा दामन तार तार। दुख मेरा बना तेरा किया तूने मुझे प्यार। दुख मेरा बना तेरा किया तूने मुझे प्यार। पाप मेरे हुए क्षमा, पाप मेरे हुए क्षमा। पहला कांटों का तूने ताज। दुख मेरा भला तेरा किया तूने मुझे प्यार। खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो इस वक्त के लिए। खुदा तेरी कुर्बानी से ही हम बचाए गए हैं। हम सब के साथ हो और हम जिस को खुदा ये खुशी की खबर सुनाएं, कहें कि मसीहा की कब्र खाली है,
वो जी उठा है, आसमान पे चढ़ गया है। खुदावन सचमुच वो इंसान यकीन करे और जैसे हम बच गए हैं वो भी बच जाए, तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। बाप तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में इस दुआ को मांग कर पाते हैं, आमीन आमीन।